determined by the rules of the procedure of the House, or if no such person is present, such other person as may be determined by the House shall act as Speaker. So the main question is, Speaker is not there. Speaker is not there. Deputy Speaker has not been selected. So such other person as may be determined by the rules of procedure of the House. Has such other person been determined by the rules of procedure of the House? You are just going and sitting there. But you have not been decided, finalized by the House. Let there be a motion moved by the Parliamentary Affairs Minister. Sri Ravi Shankar Prasad ji. That Jagdambika Baldi. Otherwise you cannot sit. सर, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी अगर प्रावधान को पढ़ा जाता है तो उसको पूर्णता में पढ़ना चाहिए। मैं 95 क्लॉज 2 को फिर पढ़ना चाहता हूं। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस, द पीपल, द डिप्टी स्पीकर ऑफ इज ऑल्सो एब्सेंट, such person as may be determined by the rules of procedure of the House. If no such person is present, such other person as may be determined. जो rules of procedure से जो प्रेजाइड करने के लिए अधिकृत है, जिसमें आप भी आते हैं, आपको पूरा अधिकार है इस पर प्रेजाइड करने का। जब कोई ऐसा पैनल का व्यक्ति नहीं है, तब आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, कृपा करके देखिए, और इफ नो सच पर्सन, ये कॉमा, इसलिए जो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है रूल 10 के अंतर्गत, जिसमें आप भी आते हैं, आपको पूरा अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आप आर्टिकल 96 जी को अलाउ किया नहीं, आर्टिकल 96 का क्लॉज देखिए। स्पीकर के बारे में इतनी बात कही जा रही है, उसमें भी स्पीकर को अधिकार है कि वहां बैठे, बोले और वोट भी दे सकता है स्पीकर, तब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है। हाँ, जब टाई होगा तब वोट नहीं देंगे। तो सर, मेरा आपसे आग्रह है, ये सारे ऑब्जेक्शन बेबुनियाद है, इसको रिजेक्ट करिए। वो बहस से भाग रहे हैं, यही दिक्कत है। बहस कराइए, हम लोग इस पूरे प्रस्ताव को डिफीट करिए, तैयार बैठे हुए हैं। A point of order was raised by Owaisi साहब, KC Venugopal जी, Saugat Rai जी. So regarding this point of order, admitting a motion for removal of honorable speaker does not make the office of the speaker vacant. So now it is clear the office of the speaker is not vacant, because still the matter is only under consideration. The office of the speaker will be vacant only after adoption of the resolution. What do you are saying? This is no point of order, and because of there is no merit in point of order, because only after adoption, if by majority it will be voted, then if the only can be vacant, office is, otherwise still there is no, you can't say कि now speaker is office is vacant. Please. बस ये पढ़िए, बस। अब प्रश्न ये है, मैंने सबको अनुमति दे दिया। प्रश्न ये है कि संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो, वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पचास से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं। नियम 201(3) के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जावेद जी, श्री जावेद जी, अब संकल्प प्रस्तुत करिए। Sir, I move the following resolution that this House, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards
disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak, making unwarranted allegations against women MPs belonging to the opposition, suspending opposition MPs for an entire session for raising issues of public concern and not rebuking ruling party members for making wholly objectionable and derogatory remarks against former PMs, feel he has ceased to maintain an impartial attitude necessary to command the confidence of all sections of this House, that in his partisan attitude, he disregards the right of members of the House and makes pronouncements and gives ruling calculated to effect and undermine such rights, and he openly espouses the version of the ruling party on all controversial matters, that all these acts constitute a serious danger to the proper functioning of this House and ventilating effectively the felt concern and grievances of the people, and therefore resolve that he be removed from his office. मंत्री जी, Permission, I rise to present a statement, Hindi and English versions, showing supplementary demand for grants, second batch for 25-26. नियम 377 के अंतर्गत आज जो मामले उठाने हैं उनकी अनुमति दी जा रही है। वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। As you wish. As you wish. 10 hours already आज इस विषय पे जिसको हमने अभी अनुमति दी है और प्रस्ताव आया है, इस पे चर्चा करने के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित हुआ है। 10 hours। और ये चर्चा 10 घंटे होगी। प्रस्ताव की अनुमति भी दे दी है और जैसा स्पष्ट है कि ये सदन में जो संविधान का आर्टिकल 94 है और लोकसभा की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 200 है, इसके दोनों के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष के पद के हटाने का संबंधित जो संकल्प है उस पर चर्चा अब शुरू होने जा रही है। आर्टिकल 94 के अंदर अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है। इसके पूर्व सूचना दी गई हो, लोकसभा के नियमों के अनुसार प्रक्रिया पालन किया जाए। और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो रूल 200 है, एक मिनट आप सबको सदन के सामने, क्योंकि चर्चा शुरू होगी, इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा है। तो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ए मेंबर विशिंग टू गिव नोटिस ऑफ ए रेजोल्यूशन अंडर क्लास सी ऑफ आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन for the removal of the speaker of the deputy speaker shall do so in writing to the Secretary General first and shall furnish the full text of such resolutions on receipt of a notice under sub rule 1. A motion for leave to move the resolution shall be entered in the list of business in the name of the member concerned on a day fixed by the speaker, provided that the day so fixed shall be any day after 14 days from the date of the receipt of notice of the resolution. Rule 200A, उसके जो ग्राह्य करने का एडमिसिबिलिटी ऑफ द रेजोल्यूशन, जो संकल्प या प्रस्ताव को ग्राह्य करना, उसमें साफ लिखा है कि इन ऑर्डर दैट सच ए रेजोल्यूशन में बी एडमिसिबल इट शैल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली it shall be specific with the respect to charges, it shall be clearly and precisely expressed, it shall not be contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statement। तो कृपया इस सदन के सामने, ये कोई सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष का नहीं है, एक हाउस के जो कस्टोडियन स्पीकर जिनमें सभी का विश्वास है, आज अगर उनके उस पर चर्चा करने आप जा रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो आपने अपने टेक्स्ट में दिया है उस टेक्स्ट तक सीमित रखें, क्योंकि स्पीकर साहब की जेनरसिटी देखिए कि ये 10 फरवरी को जब 2000 नहीं आप नहीं क्यों नहीं, मैं बताऊंगा
ये मैं केवल ये जानकारी दे रहा हूँ। नहीं, आप सुनिए, 10 फरवरी 26 को ये नोटिस आई थी। 10 फरवरी 26 को माननीय सदस्यों के द्वारा ये नोटिस आई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों का था। और 2026 को नोटिस आई, लेकिन उस नोटिस में 2025 अंकित था। उस नोटिस में रिजोल्यूशन नहीं था। उस नोटिस नहीं, वो नोटिस है। फिर भी स्पीकर साहब ने उसको कहा कि इसको करेक्ट कराइए, और ये नहीं, उस पर सिग्नेचर रिजोल्यूशन पे नहीं था किसी का। जो बाद में दिया गया वो भी फोटो सिग्नेचर था, जो वैलिड नहीं था। नहीं, मैं एक बात जनरसिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर स्पीकर साहब ने इसके बाद भी कि अगर फोटो कॉपी आपने संलग्न किया, और जो आज मूव किया है, जिन्होंने जो मूव किया है, चाहे हमारे तीनों लोगों ने, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, के सुरेश जी और डॉक्टर मल्लू रवि जी, मैं सदन को बता दूं कि ये तीनों सदस्य के दस्तखत नहीं थे, बाद में दस्तखत स्पीकर साहब ने दिया अनुमति। तो इससे साफ है, जो एडमिसिबल नहीं हो सकता था, जो ग्राह्य नहीं हो सकता था, सुन लीजिए, तो एक सदन में, अरे आप अपने स्पीकर की जेनेसिटी देखिए कि एडमिसिबल होने की, जो ग्राह्यता होने के जो कारण है, अगर वो ग्राह्य नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने खुद अपने ऑफिस से कहा इसको करेक्ट करा लो, इस पे सिग्नेचर करा लीजिए। तो अगर उन्होंने ये अवसर दिया कि अगर आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में आपको उन्होंने अगर ग्राह्य किया, खुद उस दिन से आज स्पीकर के चेयर पे नहीं आ रहे हैं, जबकि इसके पहले भी जब 1954 में आया, 1966 में आया, 1987 में आया, उस समय लगातार स्पीकर अपने चेयर पे काम करते रहे। हाई मॉरल ग्राउंड पे ये पहले स्पीकर होंगे जिन्होंने नोटिस प्राप्त होने के बाद वो नहीं बैठ रहे थे। तो कम से कम ये पूरा देश इस बात को देखे कि अगर वो आज इस हाई मॉरल ग्राउंड पे इस नोटिस के लंबित रहने तक वो नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए मैं कल चाहता था कि इस पर चर्चा हो, इसलिए कि एक स्पीकर जिन्होंने आपके इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया, और प्रस्ताव को ग्राह्य करने के बाद अगर इस चेयर पे नहीं आ रहे, तो उसका निस्तारण होना चाहिए था। ये बात हमने नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी कही थी कि इसकी सदन में तत्काल चर्चा हो। नहीं, ये चीज़ें हैं, और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कही थी। नहीं, देखिए, जो चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं उसको आप कहाँ ले जा सकते हैं। तो अब उसको अगर आप तो उसको तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो डिबेट हो अच्छी है। आज की डिबेट हो, नहीं, आप क्यों परेशान हो? चेयर को बोलने देंगे कि नहीं? आखिर इस हाउस में नहीं, मैं आपको केवल केवल तथ्य बता रहा हूँ कि तथ्य नहीं, देखिए 1954 में एक बार आया था अध्यक्ष नो पॉइंट ऑफ, अध्यक्ष जी.बी. मावलकर ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, आप सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो यह विषय अत्यंत गंभीर है, इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए और इसको सदन में आना चाहिए, तत्काल चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ हाई स्टैंडर्ड की डिबेट हो। सदस्यों ने डॉक्टर मोहम्मद जावेद अध्यक्ष जी से कहा है कि आज जावेद साहब इस पर नहीं शुरू करेंगे, नोटिस जावेद साहब का है। मैं गौरव गोगोई जी को अनुमति देता हूँ। गौरव गोगोई जी आप बोलेंगे। गौरव गोगोई जी गौरव गोगोई जी ये रिमार्क है, ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आप चेयर पे कोई रिमार्क नहीं कर सकते। गौरव गोगोई जी शुरू करें। गौरव गोगोई जी आप बैठिए। गौरव गोगोई जी, दिस इज नॉट गुड। गौरव गोगोई जी योर कमेंट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप चर्चा शुरू करें। मैंने एक कहा कि ये टेक्स्ट तक चर्चा रही थी। गौरव गोगोई जी शुरू करें। गौरव गोगोई जी गई है, केवल गौरव गोगोई जी की नो, गौरव, आप हमसे नहीं कहेंगे ना, मैंने आपको अनुमति दी है।
नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट गौरव गोगोई जी। सत्ता पक्ष मैं सबका मैं दे चुका हूं। सर, रूलिंग पार्टी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर आएगा सर, हमें भी उनका दे दीजिए पॉइंट ऑफ point of ऑर्डर order। दे चुका हूं ऑलरेडी। पार्टी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर गौरव गोगोई जी आ जाएगा सर, हमें आप भी दे दीजिए। इस चर्चा में रूलिंग पार्टी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर आने वाला है सर। इस चर्चा में आप गंभीर हैं। इस चर्चा में मैंने आपका नाम पुकारा तो आप बोलिए। सब लोग बैठिए, बोलिए। गौरव बैठिए। सौगत दादा, आपको मैं अवसर दूंगा बोलने के लिए। अरे आप बैठिए, मैं आपको अवसर दूंगा। गौरव गोगोई जी। सभा गौरव गोगोई जी। सभापति गौरव गोगोई नथिंग विल। सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज की इस चर्चा में जब मैं भाग लेने जा रहा था तो मेरी शुरुआत अलग थी, लेकिन अब जो हमने हाउस में विटनेस किया